Hello, good morning everyone. Due to your request, I'm going to upload my first video of tense. Of course, I will upload the video of tense, but before that, I'm going to provide you some words of English. Every day with the tense, I'll provide you some words. You'll have to write down those all words in your copy and remember those all words. If you want to really improve your English, for that you'll have to remember those all words. Then I'm going to provide the tense. जैसा कि आप सबने रिक्वेस्ट किया है टेंस का वीडियो अपलोड करने के लिए, बेशक मैं टेंस का वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ वर्ड्स दूंगा. आप उन वर्ड्स को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसे याद करेंगे. देखिए, मेरा सबसे पहला जो वर्ड्स है वो है स्पीड. स्पीड मीन्स थूकना. नेक्स्ट, स्नीज, छींकना. नेक्स्ट, कफ. कफ मीन्स खांसना. नेक्स्ट, बेल्च, डकारना. नेक्स्ट, स्नोर, खर्राटा लेना. नेक्स्ट, गेट हिक्कप मीन्स हिचकी आना. नेक्स्ट, नोड. नोड मीन्स सिर हिलाना. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टोरेट, खखारना. नेक्स्ट, पैंट और गैस्प मीन्स हाफना. नाउ you'll have to remember these all words. These all words are very important if you want to improve your English. I'm going to repeat these all words. Speed, थूकना. Sneeze, छींकना. Cough, खांसना. Belch, डकारना. Snore, खर्राटा लेना. Get, hiccup, हिचकी आना. Nod, सिर हिलाना. Expectorate, खखारना. Pant और gasp, both means halfna. Today you will have to remember these all words. Now I am going to start tense. As you requested to upload the video of tense, I am going to teach you about the tense. You know, friend, you all know there are three kinds of tense. Of course, there are three kinds of tense: present tense, past tense, and future tense. Now there are four kinds of present, four kinds of past, and four kinds of future. Today I am going to teach you about present indefinite tense. Today I am going to teach you about the present indefinite tense. But before going in present indefinite tense, I am going to illustrate you some basic things. Just try to understand. First one is subject. Present indefinite में जाने से पहले मैं कुछ basic चीज दे रहा हूँ. Without understanding these all basic things, you won't be able to understand the tense. Subject means, of course, कर्ता. Worker is called subject. Worker is called subject. यानी काम करने वाला कर्ता कहलाता है. Next one is object. Object means कर्म, on which there is
impact of work. Next one is verb. Verb means kriya. According to my point of view, name of work. Name of work is called verb. Friends, subject means कर्ता. Worker is called subject. काम करने वाला कर्ता कहलाता है. Next one is object. Object means कर्म, on which there is impact of work. जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है. Next one is verb. Verb means क्रिया. Name of work is called verb. देखिए, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है, और काम के नाम को क्रिया कहेंगे. हम लोग सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को ओ लिखेंगे और वर्ब को भी. सब्जेक्ट को एस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को ओ लिखेंगे, वर्ब को भी लिखेंगे. I am going to state you about subject, object and verb. Let's take one example in Hindi. मैं एक आम खाता हूं. जैसा कि मैंने कहा, काम करने वाला कर्ता होता है. मैं एक आम खाता हूं में काम कौन कर रहा है? मैं. तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. जिस पर काम की प्रभाव पड़े वो कर्म होता है. अब आप देखोगे कि इसमें प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पे. आप आम काटोगे, आम खत्म होगा, आम छोटा होगा, तो हमारा ये आम जो है ऑब्जेक्ट है. और काम कौन सा हो रहा है? खाने का. तो ये खाता हूं जो है ये वर्ब है. खाता हूं क्या है? वर्ब है. अब आप देखोगे अगर इंग्लिश ऐसा होता कि मैं का आई, एक आम का ए मैंगो, और खाता हूं का ईट. अगर ये ऐसा होता तो बड़ा आसान होता, कोई भी आसानी से बोलता है. बट एक चीज है जो हिंदी से इंग्लिश में जब आप जाओगे तो सिर्फ एक चीज डिफर करता है, वो है ऑब्जेक्ट. जब आप हिंदी से इंग्लिश में जाओगे, देखो ये मैं हो गया सब्जेक्ट, ए मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, और ईट हो गया वर्ब. जब आप हिंदी से इंग्लिश में जाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में आ जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा. नाउ इट इज करेक्ट. यानी जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में चलोगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, बट इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है. यानी कि मैं एक आम खाता हूं को आपको उल्टा सोचना है. मैं खाता हूं एक आम. आई ईट ए मैंगो. आई ईट ए मैंगो. देखो अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आपको पूरे जीवन टेंस समझ में नहीं आएगा. देखिए हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. You'll have to understand. Now I'm going to teach you about the present indefinite tense. What is present indefinite tense? What is present indefinite tense? Listen to me. A rule of identification means पहचानने का नियम. You may write in the bracket पहचानने का नियम. If we get ता है, ती है, ते हैं, etc. with the verb at the last part of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of present
indefinite tense. Listen to me. Rule of identification means पहचानने का नियम. If we get, अगर हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं? ता है, ती है, ते है, etc इत्यादि with the verb. किसके साथ? verb के साथ, क्रिया के साथ. At the last part of हिंदी sentence, हिंदी वाक्य के अंत में, we understand that, हम लोग समझते हैं कि this is the sentence of present indefinite tense. देखिए present indefinite में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते है, लेकिन किसके साथ? verb के साथ. बिना verb का tense नहीं होगा. इसमें ता है, ती है, ते है, किसके साथ होगा? verb के साथ, यानी क्रिया के साथ. जैसे मैं खाता हूं, वह जाता है, वह खेलता है, तुम पढ़ते हो, लाइक दैट. देखिए सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको एक अफर्मेटिव का फॉर्मूला देने जा रहा हूं. जैसे कि सेंटेंस भी बहुत तरह के होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं. मैं जो सबसे पहले देने जा रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य. देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 और V5 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. आपको ध्यान देना है V1 और V5 होगा और ऑब्जेक्ट होगा. मैं यहां आपको बता दूं कि V5 क्या होता है. V1 तो आप समझ रहे हो, वर्ब का पहला, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे खाना का ईट, जाना का गो, लिखना का राइट, सोना का स्लीप, थूकना का स्पीड, छींकना का स्नीज, ये फर्स्ट फॉर्म है. अब V5 क्या होता है? V5 मतलब वर्ब प्लस एस और ईएस, यानी जिस वर्ब में एस ईएस लगा है उसे V5 कहेंगे. तो यहां पे हमें दो वर्ब लगाना है, V1 और V5. किसके साथ लगाना है ये आपको ध्यान रखना है. जैसा कि अभी हमने दिया आपको, ता है, ती है, ते है, इत्यादि. ता है, ती है, ते है जब भी हो तो V1 या V5. लेकिन ये ता है, ती है किसके साथ होगा? वर्ब के साथ, क्रिया के साथ. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए अब मैं आपको यह बता दूं कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम. प्लूरल नेम मीन्स मोर देन वन नेम. इनके साथ V1 लगाएंगे, V1 लगाएंगे. इनके साथ एस नहीं लगाएंगे. एस किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. मीन्स ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हम V5 लगाएंगे. V5 मतलब जिसमें एस या ईएस लगा हो उसके साथ. चलिए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. जैसे अगर वो कि मैं एक आम खाता हूं. अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? मैं का आई. अब आप देखोगे आई के साथ V1 लगाना है, तो यहाँ पे V1 वर्ब क्या है? खाना. तो यहाँ आई, उसके बाद ईट और एक आम का हो गया ए मैंगो, बन गया आई ईट ए मैंगो. ठीक उसी तरह अगर होता कि वह एक आम खाता है. अब देखिए वह का ही. आप देखोगे कि ही के साथ क्या लगाना है? V5. V5 मतलब एस या ईएस. तो यहाँ ही, उसके बाद वर्ब हमारा ये है, तो हो जाएगा इट्स ए मैंगो. व्हाट डिड यू नोटिस? आपने नोटिस क्या किया? आई के साथ एस नहीं लगा है, लेकिन ही के साथ एस लगा है. तो आपको ध्यान रखना है कि ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ, किसके साथ? ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ V5 लगेगा. V5 मतलब एस या ईएस लगेगा. आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ V1 होगा. ठीक उसी तरह कोई भी सेंटेंस आप लीजिए जिसमें ता है, ती है, ते है होना चाहिए वर्ब के साथ, और उसे आप खुद बनाइए. जैसे कि मैं खाता हूँ, आई ईट. वह खाता है, ही ईट्स. मैं सोता हूँ, आई स्लीप. वह सोता है, ही स्लीप्स. मैं लिखता हूँ, आई राइट. वह लिखता है, ही राइट्स. मोहन लिखता है, मोहन राइट्स, क्योंकि सिंगल नाउन.
लेकिन अगर वो मोहन और रमेश लिखता है तो मोहन एंड रमेश राइट, उसमें एस नहीं लगेगा। तो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस योरसेल्फ, यू कैन डू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट डू और डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज यहां पे नोटिस करोगे कि जब डू डच लगाएंगे तो V1 होगा, यहां पे V1 होगा, V5 नहीं होगा। आपको नोटिस करना है आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ, यानी जिसके साथ V1 लगाते थे उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, और जिसके साथ V5 लगाते थे उसके साथ हम डस नॉट लगाएंगे। देखिए हम डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डोंट। तो आप कभी भी डू नॉट मत बोलिए, आप इसको डोंट बोलिए, डोंट। और डज नॉट को हम लोग शॉर्ट में डजंट भी बोल सकते हैं। तो आप कभी भी उसे डज नॉट मत बोलिए, आप इसे शॉर्ट में डजंट बोलिए, क्या बोलेंगे, डजंट। आपको ध्यान रखना है कि जब हिंदी में नहीं लगा हो और लास्ट में ता है, ती है, ते है हो, तो आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ डोंट होगा, और ही सी इट सिंगल नेम के साथ डजंट होगा। जैसे कि अगर वो कि मैं लिखता हूं, अब मैं का आई, आप देखोगे आई के साथ क्या लगना है, डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डोंट। तो हो जाएगा, एक मिनट, मैं लिखता हूं। अब ये निगेटिव नहीं है, यहां पे नहीं लगाना है, यानी लगाना है कि मैं नहीं लिखता हूं। अब देखो यहां नहीं है तभी आपको डोंट लगाना है, अगर नहीं होता तो फिर हम डोंट नहीं लगाते, वो तो फिर अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं लिखता हूं, हो जाएगा आई डोंट राइट, आई डोंट राइट। ठीक उसी तरह से होता कि वह नहीं लिखता है। अब देखोगे वह का ही के साथ क्या होगा, डजंट। ही के साथ क्या होगा, डजंट। तो हो गया ही डजंट राइट। मैं नहीं सोता हूं, आई डोंट स्लीप। लेकिन अगर होता वह नहीं सोता है, इट डजंट स्लीप। यानी आपको ध्यान रखना है कि आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डोंट होगा, जब हिंदी में नहीं लगा हो तो लास्ट में ता है, ती है, ते है होना चाहिए, इसको याद रखेंगे। ही सी इट सिंगल नेम के साथ डजंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ही सी इट सिंगल नेम के साथ क्या होगा, डजंट होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखो whenever you go in interrogative sentence you will have to notice one thing. If we get kya in the commencement of Hindi sentence, in such a circumstance helping verb is used first. अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या लगा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। यानी जब क्या पहले लगा हो तो हम डू या डस को पहले लगाएंगे। पहले किसको लगाएंगे, डू या डच को। और सब्जेक्ट विल गो इंस्टीड ऑफ नॉट, सब्जेक्ट जो है नॉट के जगह पे हो जाएगा। देन आफ्टर V1 ऑब्जेक्ट एंड इवेंचुअली क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या पहले हो तो डू डच को पहले लगाएंगे, लेकिन अगर इसमें नहीं लगा हुआ होता तो आप यहां पे भी लगा सकते हैं डोंट या डजंट। इफ यू गेट अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, अगर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाए, इफ यू गेट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिल जाए, यू मे यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट और बिफोर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जैसे अगर कि क्या मैं खाता हूं, क्वेश्चन। अब देखो किसके साथ क्या है, मैं के साथ, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगाना है, हमें डू को पहले लगाना है। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू को, ही सी इट सिंगल नेम के साथ डच को। जैसे क्या मैं खाता हूं तो होगा डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क।
लेकिन अगर होता क्या वह जाता है, या वह खाता है, या वह सोता है, कुछ भी, तो वह के साथ क्या पहले है, तो हम डस को पहले लगाएंगे। सबसे पहले होगा डज, उसके बाद ही, उसके बाद स्लीप। क्या था, जाता है, जाता है का गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्यों, क्योंकि ही के साथ डज लगाना है और आई के साथ क्या लगाना था, डू। तो ये ध्यान रखिएगा कि आई, वी, यू, दे प्लुरल नेम के साथ डू लगेगा, बी वन। ही, सी, इट सिंगल नेम के साथ डज लगेगा। कब, जब हिंदी में क्या हो। लेकिन अगर इसमें नहीं होता, जैसे क्या मैं नहीं खाता हूं, तो आप यहां भी डोंट लगा सकते थे, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते थे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अपनी सुविधा अनुसार आप लगाइए। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब आप ग्रामर को देखोगे तो ग्रामर में आपको ये स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग से लिखा हुआ नहीं मिलता है। हमें क्या करना है, whenever we get question word at the mid part of Hindi sentence, in such a circumstance we'll have to use question word first in English. जब भी कोई हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड हो तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। यानी कि सिर्फ इंट्रोगेटिव के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिएगा, वो बन जाएगा स्पेशल इंट्रोगेटिव। जैसे क्या मैं खाता हूं बन गया डू आई ईट। लेकिन अगर यहां पे ये होता कि मैं क्या खाता हूं, आप देखो इसमें क्या है, क्या मैं खाता हूं डू आई ईट। लेकिन अगर आप लिखोगे मैं क्या खाता हूं, आप सेंटेंस में गौर कीजिए, पूछ रहा है मैं क्या खाता हूं, तो यहाँ पे क्या का एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है क्या का, व्हाट। उसके बाद मैं है तो डू, उसके बाद आई, देन आफ्टर ईट, व्हाट डू आई ईट। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हिंदी के बीच में हो तो उसको पहले निकालेंगे। जैसे अगर वो कि मैं कितनी बार खाता हूं, मैं कितनी बार खाता हूं। आप सेंटेंस पे गौर करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कितनी बार। तो कितनी बार का हाउ ऑफेन, कितनी बार का हाउ ऑफेन। अब मैं है तो ऑफ कोर्स आई के साथ डू लगाना है, हाउ ऑफेन डू आई इट। लेकिन अगर यहाँ वह होता, ही, सी, इट सिंगल नेम होता तो डज लगाते। आई, वी, यू, दे प्लुरल नेम के साथ डू लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर हिंदी के बीच में हो तो उसको पहले निकाल देंगे। You'll have to remember this all. I hope you are understanding about the present indefinite tense. Next day I'll teach you about the next tense. Thank you. If you like this video, please share and subscribe. Thank you, friend. Thank you.